I'm Dr. Nancy Sani, Chief Dietitian of Department of Dietetics, PGI Chandigarh. So today we are organizing a continuing nutrition education program on challenges in gastroenterology nutrition and the prevention and treatment for the same. So basically we will be focusing on gastronutrition today. Why? Because if you see, there are so many people who have gastro problems nowadays. हर इंसान को अगर आप 100 किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी स्कूल में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इफ़ यू सी कि वेन एवर यू फील आस्क अ पर्सन हाउ ही इज़ फीलिंग, या तो उसको एसिडिटी होगी या फ्लैटुलेंस होगी, रीगर्जिटेशन होगी. सो दीज हैव बिकम वेरी कॉमन एंड बाद में जाके दे बिकम serious issues, जैसे constipation, diarrhea. So we are so wrapped up in today's day-to-day stresses कि हम उनको ignore कर देते हैं, but then they grow into something different. So that is why today's focus is this, because it has to be catered to in today's lifestyle, because everything begins with the gut. All diseases begin in the gut is a saying by the Hippocrates, and it's very true, because there is something called gut-brain axis, and it actually affects all the metabolic diseases. So if the gut health is not good, if there is a gut dysmicrobiota, it actually affects all the metabolic diseases, like for example diabetes है या कुछ है. जैसे आजकल you must have heard there's so many artificial sweeteners which are in use. पता भी नहीं चलता हम कब ले लेते हैं वो artificial sweetener, चाहे वो डाइट कोक है, चाहे वो बिस्किट्स हैं, चाहे वो कोई सप्लीमेंट है जो स्लिमिंग सप्लीमेंट है. सो हैव एनीबडी pondered upon the fact that what they do, they just create havoc with our gut microbiota, and then it is a start of diseases. So how they can overcome with these kind of disease? It is a faulty life and faulty dietary lifestyle. So this is the main thing. जो हमारा root cause तो यही है. Secondly, हम भूल ही गए हैं कि नॉर्मल खाना कैसे खाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में खाना कैसे खाते हैं, स्ट्रेस फ्री खाना कैसे खाते हैं. हम बाकी चीज़ें प्रायोरिटाइज करते हैं, पर जब बीमार होते हैं तो देन इट इज़ टू लेट. देयर इज़ नो यू टर्न उस टाइम पे, माइट बी बिकॉज उस टाइम पे वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, और वी आर ऑन मेडिकेशंस, और वी आर ऑन डॉक्टर्स, दिस थिंग. देन वी रियलाइज, जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा लोगों को कितना रियलाइज हुआ, कोविड ख़त्म हो गया, रियलाइजेशन ख़त्म हो गई. देन पहले ये किचन फार्मेसी है, जैसे पुदीना है, ये अपना जिंजर है, हल्दी है, हींग है, अजवाइन है, सौंफ है. पहले लोग कितना यूज़ करते थे अपने खाने में. हमारी दादी नानियाँ सब बोलती होती थी कि ये ऐसे, और हमने भी यूज़ किया. फिर आजकल के बच्चे तो घर का खाना ही नहीं खाते, तो ये चीज़ें तो कहाँ पे उनको, दे जस्ट disapprove of these things. But basically these are all there are certain studies on these things. Of course more research is required, but they can be therapeutic and they can be curative also in these GI disturbances. We'll be talking basically about IBS, the irritable bowel syndrome. Then we'll be talking about gastroesophageal reflux disease, then constipation, diarrhea. Then there is a cow milk protein allergy in children nowadays, so we'll be talking about that. So about probiotics, role of probiotics. Then of course we'll be talking about the surgical nutrition also, that after surgery. In these days lifestyle is totally changed. Yes. Can you just suggest your diet plan for them so that they can avoid these kind of diseases? See, only diet plan cannot do. It has to be a full assessment, a full assessment that why they are doing it, what is the root cause. If I just give you a diet plan, you will not be able to follow it more than 4-5 days or a week or 10 days, and then you will be back to square one. So it is for a full nutrition care process that has to be followed, not just a diet plan. We have to assess what is the problem, monitor it, then we have to give a tailor-made thing, then again reassessment is there. So it's a long process, not just rolling out a diet plan कि ये ले लो वो ले लो तो आप ठीक हो जाओगे. It is not so simple. I am heading the pediatric gastroenterology and hepatology unit here in PGI Chandigarh, and the nutrition is a part and parcel of treatment basically. Unless you take care of the nutritional aspects of any sick child, you are going to lose the battle.
there's a very good chance that you will lose the battle. So everybody needs to be sensitized towards this, the physicians as well as the patients. So education, health education, and this activity is actually doing Yeoman's wonderful job because they are educating everybody about the importance of nutrition. We fail as physicians if we do not pay adequate nutrition to the patients who are admitted under us. And specifics अगर हम जाएं तो we deal with celiac disease. I think we are seeing the largest number of celiac disease patients in the whole world. That is the pediatric gastroenterology unit in PGI. It is actually acclaimed that we are seeing the maximum number of patients in the world, and I am not very happy with the way we are going about the gluten-free diet. Unfortunately, our systems of food monitoring safety are not in place. So the availability of a safe gluten-free diet for our patients of celiac disease, that is commonly called wheat allergy, is still a far-fetched dream. नमस्कार, मैं आज जो हमारी कंटिन्यूइंग न्यूट्रिशन एजुकेशन हो रहा है उसमें मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और इसमें हमारी करीब 600 से अधिक डेलीगेट्स आए हुए हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं और लुधियाना से आए हुए हैं, PGI चंडीगढ़ से आए हुए हैं, गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज एंड ऑल्सो वी आर। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज हो रहा है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही हैं, उसके लिए भी आप लोगों ने जो स्टडी कुछ करी होंगी, तो क्या आप किसी सजेस्ट करोगे? इसकी स्टडी यही है कि हमारे PGI में कई सारी स्टडीज हुई है और इसमें देखा गया है कि लोग काफ़ी तक जंक फूड्स खा रहे हैं, काफ़ी टी कॉफ़ीज़ वगैरह काफ़ी मात्रा में सेवन कर रहे हैं और बीच में जो न्यूट्रिशन होनी चाहिए, जो न्यूट्रिशस डाइट होनी चाहिए, उसकी बहुत कमी रह रही है और डाइट की गैप रह रहा है, काफ़ी एम्प्टी स्टोमक में भी रह रहे हैं, जिसके चलते गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि स्मॉल मील्स फ्रिक्वेंटली लेना होता है कि थोड़ी खाना बार बार किया जाए, चाहे वो कोई भी आप स्नैक्स में हो जाए, चाहे मील में हो जाए, चाहे हमें अनाज की चीज़ें हो जाए, दाल की चीज़ें हो जाए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो नॉर्मल न्यूट्रिशन मिलता है वो कमी देखा गया है। और जंक फूड में जो पिज़्ज़ा, बर्गर या और कोई नमकीन, भुजिया, तली हुई चीज़ें, ये बहुत सारे लोगों की हैबिट्स बन गया है और ऑनलाइन ऑर्डर करके सारी चीज़ें अपने आप को खाना को उन्होंने काफ़ी लोगों ने बहुत ही अपनी पेट को भर रहे हैं, जिसके चलते ये अनहेल्दी खाना कहा जाता है। हमारी जो स्टडीज हुई है इसमें हमेशा कहा गया कि अब स्मॉल मील्स फ्रिक्वेंटली लो, हेल्दी डाइट लो। हेल्दी डाइट में क्या है, अनाज लो और आजकल जो अनाज में, छोटे अनाज में जो आता है, रागी आ रहा है, कोरुआ आ रहा है, बहुत सारे अनाज, छोटे अनाज है, ये सभी चीज़ें भी आप उसको लिया जाए, उसके साथ को इनकॉर्पोरेट किया जाए गेहूं के साथ, गेहूं के आटे के साथ, और दालें में छिलके वाली दाल लिया जाए और सब्जी, हरी सब्जी, सारी सीजनल हरी सब्जी लिया जाए, फ्रूट्स जरूर लिया जाए। जूसेस वगैरह में इतनी फ़ायदा नहीं है, बट मैं कहूँगा कि फ्रूट्स लिया जाए। और सबसे कमी चीज़ है कि वो दही की कमी, जो है कि हमें कोई लोग दही की सेवन करना सोचते नहीं है, जैसे कि सर्दी आ गया, दही कोई खाना पसंद नहीं करता है कि नहीं, सर्दी में हम दही नहीं खाते हैं। दीज आर टैबूज। कोई भी सीजन में दही आप ले सकते हैं, इसमें कोई कुछ एक मैसेज। सुखजिंदर, डाइटिशियन PGI। आज हम ये कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं गैस्ट्रो के ऊपर, आजकल देखा गया है कि गैस्ट्रो की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जा रही है। तो इसका जो मेन कारण है वो जैसे फास्ट फूड है, लोग ज़्यादा खा रहे हैं, स्पाइसी फूड है, उसमें लाल मिर्च है, हरी मिर्च है और मसाले हैं, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं आजकल पब्लिक में ना। अगर OPD में देखा जाए तो अगर 100 पेशेंट आते हैं, 100 में से 30-40 पेशेंट हर रोज़ गैस्ट्रो की प्रॉब्लम, यानी जिसको GERD बोलते हैं, उस प्रॉब्लम के आ रहे हैं। तो वो लोग जो चाय ज़्यादा पीते हैं, उनका फास्ट लाइफस्टाइल काफ़ी बिजी हो गया है, खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पा रहे। तो हम जो बातें इसमें आज बताई जा रही हैं जिससे कि इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो जैसे कि हम लोग फ्रेश खाना खाएंगे, घर का बना खाएंगे, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, लिक्विड में पानी है, ज़्यादा पिएँ पूरे दिन में, और स्ट्रेस कम रखें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिविटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। इन सब चीज़ों को फॉलो करके हम लोग भी इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, तो ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो।